Hello dear children, welcome to my channel Computer Science with Meena Dogra। इस वीडियो में बेटा आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 CBSE क्लास 10th के यूनिट 3 DBMS चैप्टर के सेशन 4 रिट्रीव डेटा यूजिंग क्वेरी के अंदर आने वाले सिलेक्ट कमांड के पार्ट 2 को डील करेंगे। पार्ट 1 इस वीडियो को ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और मैं पार्ट सिलेक्ट कमांड के साथ साथ क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कमांड्स के वीडियोस भी अपलोड कर चुकी हूँ। सो जस्ट इन केस आपने ये वीडियोस ना देखे हो, इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। आई विल प्रोवाइड देयर लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड also as I always say that my videos are thoroughly based on the CBSE curriculum, and I will also share the link for the revised CBSE curriculum and the study material for the same in the description. So let us now focus on what is there in this video, what we are going to cover in this video. We are going to cover logical operators and or not in part 2. And using and or, we are going to also learn how we can filter records on multiple conditions. So select command देते time जब आप where के साथ conditions देते हो, how you can give multiple conditions with where. ठीक है? So without wasting time, let us proceed with this video. See, this is the same table, my let's try table, that I'm going to base my examples on. इस वीडियो में बेटा इस एग्जाम्पल में आप ये देखो कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हम वो रिकॉर्ड्स कैसे सिलेक्ट करते हैं। सपोज आई वांट टू सी द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द क्लर्क्स, सो आई विल राइट select asterisk and details देखनी है, तो details means I would like to see all the columns. So instead of writing down the names of all the columns, I can even mention asterisk. I told this to you in the previous video, part 1 video. So I'll write select asterisk from employee where job is equal to clerk. Fine. Now as you can see from this data, clerk, I have the details of two clerks. One is hailing from city New Delhi and another belongs to city Noida. Now question arises, what if I want to see the details of clerk who belong to New Delhi? That means I will be making use of two columns. I have to check the value for job as well as the value for city column. ठीक है? So that means मुझे दो columns पर conditions लगानी है और एक ही person के लिए लगानी, मतलब उन matching records में दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, मेरी valid होनी चाहिए कि the job should be clerk and the city should be New Delhi. So, यहाँ मेरी नीड अराइज होगी कि कैसे मैं मल्टीपल कॉलम्स पर कंडीशंस दूं। ठीक है, तो कंडीशंस तो मुझे पता है, जॉब इज इक्वल टू क्लर्क एंड सिटी इज इक्वल टू न्यू दिल्ली, बट देन हाउ विल आई कंबाइन दीज कंडीशंस? दैट इज द पर्पस, और दैट इज व्हाट आई गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। सिमिलरली इफ आई वांट टू सी, मैंने लिखा सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 25। ठीक, सो मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 25 में सारे ही कंडीशंस ट्रू होंगी, सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, बिकॉज एवरी एम्प्लॉय एज इज अबव और सेम एज 25। फाइन, एक 25 के इक्विवेलेंट है, बाकी 25 से अबव है। नाउ व्हाट आई वांट कि जो मेरे ऐसे एम्प्लॉय की डिटेल्स दीजिए जो 25 और 30 की रेंज में लाई करती हो, जिनकी एज मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 25 एंड लेस देन इक्वल टू 30। Again मेरी दो conditions बनेंगी, my lower bound for the age would be 25 and my upper bound for the age would be 30. So on the same column, that is age column, I want to check two values, 25 as well as 30, and all the ages that lie between them. That means I want to fetch these three records as per this table data, क्योंकि ये तीन values ऐसी हैं age की जो 25 to 30 के बीच में lie कर रही हैं। So this is what is the purpose of this video. You will learn how to put multiple conditions. You can put them on the same column or you can put them on different columns. And for that you will make use of logical operators. Fine. So हमने पिछले सेशन में relational comparison operators पढ़े थे, arithmetic operators पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे logical operators. So three logical operators are provided by OpenOffice base and every SQL based RDBMS. ठीक है, दे आर एंड और एंड नॉट, एंड और नॉट। इसमें एंड और का काम क्या है बेटा, ये मिनिमम दो कंडीशंस पे वर्क करते हैं, दैट इज ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, दो या दो से ज्यादा कंडीशंस पर लगाए जाते हैं, और
उनको कंबाइन करने का काम करते हैं. सो दे कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस बेस्ड ऑन सिंगल फील्ड. या तो आप सेम कॉलम पर दो कंडीशंस लगा रहे हो, या दो से ज्यादा कंडीशंस लगा रहे हो, या आप डिफरेंट कॉलम्स पर कंडीशंस लगा रहे हो. सो दे कंबाइन एंड और दे आर यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन मोर देन वन कंडीशन. सर्च करके आपको डिस्प्ले करेंगे वो रिकॉर्ड्स जिन पर एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई हुई है. ठीक. लॉजिकल ऑपरेटर नॉट जो है वो मेरा यूनरी ऑपरेटर है. यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं जो सिंगल कंडीशन पे वर्क करते हैं. सो ये नॉट क्या करता है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो उसको दिखाता है. रिकॉर्ड को कब दिखाता है, जब वो उस कंडीशन से मैच नहीं कर रहा. सो दैट मीन्स कंडीशन चेक होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है, नॉट लगे होने, नॉट क्या करेगा, उसके ऑपोजिट रिकॉर्ड्स दिखाएगा. इट विल डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू. ठीक. तो उसको करके देखते हैं. ठीक है. सो कैसे आगे बढ़ते हैं, देखो एंड का सिंटैक्स लेते हैं. पहले सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम, एस्ट्रिक भी लिख सकते हो, वेयर पुट द फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन. जितनी कंडीशन है आपको लिखनी है, बट इन्हें ज्वाइन या कंबाइन किससे करना है, विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर. ठीक. विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर. सो आपने दो मिनिमम देनी है कंडीशंस, क्योंकि ये बाइनरी मैंने आपको बताया ऑपरेटर है. दो से ज्यादा भी आप दे सकते हो, लेकिन आपने इनको एंड से कंबाइन किया. अब एंड से कंबाइन करने से और से कंबाइन करने में क्या डिफरेंस है, जब दोनों ही कंबाइन करने के लिए यूज हो रहे हैं. सो वेयर लाइज द डिफरेंस, लेट्स सी. एंड ऑपरेटर विल डिस्प्ले द रिकॉर्ड इफ ऑल द कंडीशंस सेपरेटेड बाय एंड आर ट्रू. दैट मीन्स एंड में अगर आपने मान लीजिए कंडीशंस, तीन कंडीशंस को एंड से कंबाइन किया है, सो कंडीशन 1 भी ट्रू होनी चाहिए, 2 भी ट्रू होनी चाहिए, कंडीशन 3 भी ट्रू होनी चाहिए, तभी ये सेलेक्ट कमांड आपको जो कॉलम्स आप चाह रहे हो वो दिखाएगा. सो रिकॉर्ड कब विजिबल होगा, जब ऑल द कंडीशंस दैट यू आर कंबाइनिंग विद द हेल्प ऑफ एंड आर true. If any of these conditions is false, if any of even a single condition is false, your record will not be displayed. फाइन. सो एंड तब लगाते हैं जब हमें सारी कंडीशंस को ट्रू पे कंसिडर करके रिकॉर्ड को दिखाना है. इसका एक एग्जांपल लेते हैं. मल्टीपल कंडीशंस ऑन अ सिंगल फील्ड पर. देखो जो भी मैंने आपको बताया था, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 एंड एज लेस देन इक्वल टू 30. सो मैंने एज कॉलम पर दो कंडीशंस लगाई. पहली कंडीशन है कि एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25. उसमें मेरे सारे रिकॉर्ड्स आ रहे थे, बट आई वांट टू बाउंड दैट एज, आई वांट टू पुट अ लिमिट ऑन दैट एज. मैंने कहा एज 25 या अबव हो या 30 और बिलो हो, यानी लेस देन इक्वल टू 30 भी होनी चाहिए. सो आई हैव गिवन काइंड ऑफ अ रेंज कि मेरी 35 टू 30 के बीच में जो एम्प्लॉइज हैं उनके रिकॉर्ड्स दिखाइए. सो I want both these conditions to be true, so I have combined them with the help of AND operator. So where के बाद मैंने अपनी पहली कंडीशन दी, फिर मैंने AND operator लगाया और फिर मैंने अपनी दूसरी कंडीशन दी. अब इस कंडीशन इन दोनों रेंजेस में मैच होते हुए रिकॉर्ड्स ही आपको विजिबल होंगे. मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगी. सो दैट मीन्स अगर एज की वैल्यू 40 है किसी की, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 25 में तो ट्रू हो जाएगी, क्योंकि 25 से बड़ा है 40. लेकिन लेस देन इक्वल टू 30 के केस में वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. और मैंने आपको क्या बताया, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा. सिमिलरली अगर आपने एज यहाँ दे दी 20, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 25 वाली कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई. तो आपका क्योंकि 25 से छोटा है ना, तो आपका भले ही वो सेकेंड कंडीशन ट्रू हो रही है, लेकिन 20 जो है आपका लेस देन 20 वाली कंडीशन होने की वजह से, वैल्यू 20 होने की वजह से ये इसमें सेटिस्फाइड नहीं होगा. ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं और इसके एक और एग्जांपल देखते हैं. मल्टीपल कंडीशंस ऑन डिफरेंट फील्ड्स. इससे क्या मतलब है, अब मेरे कॉलम्स बदल गए. देखो जहां जॉब की वैल्यू क्लर्क है, आई वांट टू सी ऑल द रिकॉर्ड्स वेयर द वैल्यू ऑफ जॉब इज क्लर्क एंड द क्लर्क बिलोंग्स टू सिटी न्यू दिल्ली. सो अगर मेरा क्लर्क नोएडा में है या गाजियाबाद में है, ग्रेटर नोएडा में है, किसी भी सिटी, इफ इट इज नॉट न्यू दिल्ली, माई रिकॉर्ड विल नॉट बी shown to me. And remember, whenever we are matching character type values जिनका varchar या char डेटा टाइप है, तो केस सेंसिटिव कंपैरिजन होता है. सो हेयर यू विल हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. सो जॉब की वैल्यू जहाँ क्लर्क है और सिटी की वैल्यू यहाँ पर न्यू दिल्ली है. बोथ दीज कंडीशंस इफ दे आर ट्रू. सी न्यू दिल्ली में मैनेजर भी रिजाइड कर सकता है, लेकिन
अगर जॉब क्लर्क होगी और सिटी न्यू दिल्ली होगी, यानी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, तो ही आपका रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। अगर क्लर्क नोएडा को बिलोंग करता है, सेकंड कंडीशन फॉल्स होती है, और न्यू दिल्ली में अगर मैनेजर बिलोंग करता है तो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है। इन दैट केस आपका रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, सो एंड के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑल द रिकॉर्ड्स मस्ट बी, ऑल द कंडीशंस मस्ट बी ट्रू, ओनली देन only and only then and operator will show your records. Fine, so उसको practically करके देखते हैं अब हम। I have the same table, employee table, और इसके लिए मैंने आपको इसमें मेरे वही सेम 5 रिकॉर्ड्स हैं, and I will show these examples to you practically now. Let us again, मैं आपको रिकॉल करा दूं, हमें डेटाबेस सेक्शन में क्वेरीज टैब पर जाकर क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू पर क्लिक करना है, एंड हियर आई विल राइट माय कमांड। पहले सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कर लेते हैं और इस क्वेरी विंडो से, क्वेरी डिजाइन विंडो के रिजल्ट को देख लेते हैं। सो सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एफ एम्प्लॉई सेमीकोलन एंड देन आई प्रेस F5. दिस इज गिविंग मी ऑल माय रिकॉर्ड्स। फाइन, सो अब एंड कंडीशन लगा के देखते हैं। सी, मैंने यहाँ लिखा where age greater than equal to 25. ठीक, F5 किया, so every employee is satisfying this criteria, everyone is aged above 25. अब मैंने यहाँ 30 लिखा। ठीक है, मैंने 2 कंडीशंस दे दी, अभी मैंने लॉजिकल ऑपरेटर बीच में नहीं लगाया। सो देखते हैं क्या होता है। आई गेट अ सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्यों आया? क्योंकि मैंने कंडीशंस को लिख तो दिया, दोनों कंडीशंस जो मुझे चाहिए थी लिख तो दी, बट आई डिड नॉट जॉइन देम। सो ज्वाइन करने के लिए व्हाट आई विल राइट, आई वांट बोथ ऑफ देम टू बी ट्रू, है ना। मैं चाहती हूँ 25 से अबव भी हो, 25 और अबव भी हो, बट 30 या 30 से कम भी हो, तो रेंज देनी है मुझे। सो आई हैव पुट प्लेस्ड एंड लॉजिकल ऑपरेटर, और अब मैं F5 करती हूँ तो देखो आप, मेरे पास ये 3 रिकॉर्ड्स आते हैं, 28, 30, 25 इस रेंज में आ गए। ठीक है, सो इससे क्या हुआ, मेरी दोनों कंडीशंस ट्रू होने पर कौन से मेरे रिकॉर्ड्स एलिमिनेट हुए? इसमें से 2 रिकॉर्ड्स एलिमिनेट हुए बिकॉज उनकी एजेस जो हैं वो इस क्राइटेरिया में लाई नहीं कर रही थी। ठीक है, सो एंड में ये एज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 भी ट्रू है और एज लेस देन इक्वल टू 30 भी ट्रू है। जहां कॉलम, एज कॉलम की वैल्यू उस रेंज में लाई करेगी, तब आपको उस एम्प्लॉय की या उन एम्प्लॉयज की सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। ठीक है, सो ये तो हो गया, हमने एक ही कॉलम पर मल्टीपल कंडीशंस दी। अब करते हैं, अगर हम मल्टीपल कॉलम्स पर कंडीशंस देते हैं, सो वही वाला एग्जांपल लेते हैं, वेयर जॉब इज इक्वल टू, आई राइट क्लर्क एंड सिटी इज इक्वल टू, आई राइट नोएडा या न्यू दिल्ली। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। See, I get 1 record. ठीक है, clerk with employee ID 1, employee with employee ID 1 आदित्य शर्मा is a clerk who resides in New Delhi. ठीक, अब अगर मैं यहाँ पर न्यू दिल्ली की जगह ग्रेटर नोएडा कर दूँ, ठीक, देखो I get an empty result set because clerks ये कंडीशन ट्रू थी, जॉब क्लर्क तो मुझे मिल गया, लेकिन सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गई। क्लर्क्स के जो रिकॉर्ड्स हैं वो 2 ही सिटीज में लाई कर रहे हैं, नोएडा एंड न्यू दिल्ली। सो सेकंड कंडीशन फॉल्स होने की वजह से आई कुड नॉट गेट एनी आउटपुट। फाइन, सो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों कंडीशंस जब, या जितनी भी आपकी कंडीशंस हैं वो जब ट्रू होंगी तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। सो इफ आई राइट CEO इज इक्वल टू नोएडा, जॉब इज इक्वल टू CEO, लेट्स ट्राई। I get this record now because the CEO, the person who is the CEO, that is employee ID 5, resides in Greater Noida. So अब ये दोनों conditions true होने की वजह से मुझे records visible हुआ है। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको limited columns देखने हैं, selected columns देखने हैं, तो asterisk की जगह you give the column names. But if you want to see the entire details, you place an asterisk and just remember that it is case sensitive. ठीक है, केस सेंसिटिव होगा। और दूसरी चीज, अगर आप कंडीशन सारी ट्रू होने पर ही आपके पास रिजल्ट आएगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। सपोज मैं जी छोटा कर देती हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं आया, बिकॉज छोटे जी से ग्रेटर नोएडा स्टार्ट नहीं हो रहा, ग्रेटर वर्ड कैपिटल जी से स्टार्ट हो रहा है। सो इट इज गोइंग टू शो only when the cases of the text that you have given with the column is going to match, और कैरेक्टर कॉलम को आपको सिंगल कोट्स में देना है, ये ध्यान रखना।
ठीक है। सो एंड ऑपरेटर अगर हमें क्लियर हो गया तो अब हम और ऑपरेटर पे बढ़ते हैं एंड लेट अस प्रोसीड विद द प्रेजेंटेशन। और ऑपरेटर का भी वही काम है, इट इज यूज्ड टू कंबाइन कंडीशंस, बट एंड की जगह अब हम यहाँ और यूज करेंगे। मिनिमम 2 कंडीशंस हमें देनी है, 2 से ज्यादा भी दे सकते हैं, बट यहाँ डिफरेंस क्या आया कि इवन इफ एनी कंडीशन इज ट्रू, इधर ऑल और इवन अ सिंगल कंडीशन इज ट्रू, हमारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो जाएंगे। सो और विल डिस्प्ले अ रिकॉर्ड इफ एनी ऑफ द कंडीशंस सेपरेटेड बाय इट इज ट्रू। दिस वाज नॉट द केस विद एंड वेयर एवरी कंडीशन हैड टू बी ट्रू in order to display the records. So और में एक भी ट्रू होगा तो हमारा काम चल जाएगा। सो वैसे ही करते हैं इसको। मल्टीपल कंडीशंस ऑन अ सिंगल फील्ड। आई वांट टू सी द डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हु बिलोंग टू नोएडा और न्यू दिल्ली। So same column है, select asterisk from employee where value of city is Noida or value of city is New Delhi. So I am combining 2 conditions with or. What is going to happen over here? अगर सिटी की वैल्यू नोएडा है या सिटी की वैल्यू न्यू दिल्ली है, दोनों में से जो भी कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, आपको उसके बेसिस पर रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क और सिटी इज इक्वल टू न्यू दिल्ली। अब क्या होगा, ये मल्टीपल कंडीशंस हमने लगाई डिफरेंट फील्ड्स पर। तो जॉब की वैल्यू या तो जॉब फील्ड की वैल्यू क्लर्क हो, या तो सारे क्लर्क्स के रिकॉर्ड्स आएंगे या उन सारे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स आएंगे जो न्यू दिल्ली को बिलोंग करते हैं। सो दिस इज गोइंग टू शो यू द डिटेल्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज हु आर आइदर क्लर्क्स और हु रिजाइड इन न्यू दिल्ली, जिनकी सिटी न्यू दिल्ली है। सो दोनों ही कंडीशन, अगर यहाँ एंड लगा होता तो इट वुड हैव शोन यू क्लर्क्स हु बिलोंग टू न्यू दिल्ली, जो हमने भी पीछे एग्जाम्पल में देखा। लेकिन और लगे होने की वजह से क्लर्क्स की भी डिटेल्स आएंगी और न्यू दिल्ली वाले रिकॉर्ड्स भी शो होंगे। सो अब इसको करके देखते हैं। देखो, वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क और सिटी इज इक्वल टू न्यू दिल्ली। तो अब आप देखो, क्लर्क्स भी न्यू दिल्ली में आ गए, जो हमारा जूनियर मैनेजर है वो भी न्यू दिल्ली को बिलोंग करता है। सो ये हमारी कौन से रिकॉर्ड्स आए 5 में से? ग्रेटर नोएडा वाला नहीं आया। और एक मेरा, अगर मैं इसको पूरे डिटेल्स को देखती हूँ, सपोज आई सिंपली पुट कॉपी पेस्ट दिस ओवर हियर, आई विल कट पेस्ट, ठीक है, आई विल पुट दिस लेटर and then try। तो नोएडा के 2 मेरे रिकॉर्ड्स थे और ग्रेटर नोएडा के रिकॉर्ड्स थे। अब आप इसको फिर से देखो, है ना। तो मेरे पास क्लर्क्स के 2 एंट्रीज हैं, ID 1 and 3, और न्यू दिल्ली की आई हैव 3 एंट्रीज, ID 1, 2। मतलब ये ID 2 किस वजह से आई? क्योंकि सिटी की वैल्यू न्यू दिल्ली थी। और ID 1 और 3 किस वजह से आया बेटा? सिटी जॉब की वैल्यू क्लर्क थी, ठीक है। और ID 2 क्यों नहीं आया? क्योंकि ID 4 क्यों नहीं आया? क्योंकि ना ही सिटी मैच हुई ना जॉब मैच हुआ। सिमिलरली ID 5 भी नहीं आया क्योंकि ना ही सिटी मैच हुई ना जॉब मैच हुआ। सो जहां जॉब की वैल्यू क्लर्क हो और या फिर सिटी की वैल्यू न्यू दिल्ली हो, वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो जाएंगे। सी, यू कैन सी फॉर योरसेल्फ, 2 रिकॉर्ड्स हैव बीन एलिमिनेटेड, ठीक है, एंड 3 आर बीइंग शोन। अगला देखते हैं। इसमें हमने लिखा था, इससे जो पहले वाला एग्जाम्पल था, दैट वाज, लेट मी जस्ट शो इट टू यू, सिटी इज इक्वल टू नोएडा और सिटी इज इक्वल टू न्यू दिल्ली, ठीक है। सो आई जस्ट चेंज दिस कंडीशन। सिटी इज इक्वल टू नोएडा और सिटी इज इक्वल टू न्यू दिल्ली। सो ये देखो, अब हमारी सिटी की वैल्यू या तो नोएडा है या न्यू दिल्ली है, तो वो रिकॉर्ड्स आ गए हैं, सिर्फ ग्रेटर नोएडा वाला रिकॉर्ड एलिमिनेट हुआ है, ठीक है। अब इधर एक इसे फॉल्स कर देते हैं और इसको न्यू दिल्ली की जगह आई सिंपली राइट दिल्ली। तो भी मेरे नोएडा वाले रिकॉर्ड्स आए, दिल्ली की कोई एंट्री नहीं थी, दैट वाज नॉट कंसिडर्ड। तो मेरी एक कंडीशन ट्रू हो गई, सिटी इज इक्वल टू नोएडा। एक भी ट्रू होने पर मेरे पास रिकॉर्ड्स आ रहे हैं,
ठीक है। सो दिस इज हाउ अब हम कंबाइन करते हैं कंडीशंस को, सेम कॉलम्स को कंबाइन कर सकते हैं और के साथ, या डिफरेंट कॉलम्स पर कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हैं, एंड वी आर गोइंग टू गेट व्हाट, इफ आइदर ऑफ द कंडीशंस इज ट्रू वी आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। फाइन। सो अगर मैं अब यहाँ पर सिटी इज इक्वल टू गाजियाबाद कर देती हूँ, ठीक है। सो इफ आई राइट गाजियाबाद, तो ना ही मेरी सिटी कॉलम में गाजियाबाद वैल्यू है, ना ही सिटी कॉलम में दिल्ली वैल्यू है, सो माय रिजल्ट इज एम्प्टी। फाइन। सो एक भी ट्रू होने पर रिजल्ट आएगा, और अगर एक भी ट्रू नहीं है तो ही आपका रिजल्ट सेट एम्प्टी आएगा, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रेजेंटेशन को आगे लेकर चलते हैं। लास्ट ऑपरेटर है मेरा नॉट ऑपरेटर, ठीक है। बेटा ये नॉट ऑपरेटर क्या करता है, एक तो सिंगल कंडीशन पे काम करता है, एंड इट विल डिस्प्ले अ रिकॉर्ड इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू। तो जैसे इस एग्जांपल में सिटी इज इक्वल टू न्यू दिल्ली, वेयर सिटी इज इक्वल टू न्यू दिल्ली में न्यू दिल्ली वाला रिकॉर्ड्स आते। अब मैंने यहाँ लिख दिया नॉट, ठीक है। तो जहां सिटी न्यू दिल्ली नहीं होगी, इसके ऑपोजिट रिकॉर्ड्स मेरे पास आएंगे। तो ये इस कंडीशन को, जहां सिटी इज इक्वल टू न्यू दिल्ली होगा, यहाँ नॉट लिखने की वजह से क्या हो जाएगा कि न्यू दिल्ली के अलावा वेयर सिटी इज नॉट न्यू दिल्ली, वो वाले रिकॉर्ड्स मेरे पास आएंगे। और आप देख पा रहे हो मैं एक ही कंडीशन से पहले इसको लगा रही हूँ। तो उसको करके देखते हैं। सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉई, लेट अस फर्स्ट सी द रिकॉर्ड्स, एंड नाउ आई विल राइट वेयर। देखो पहले हमने लिखा सिटी इज इक्वल टू नोएडा, ठीक। तो मेरे पास नोएडा वाले रिकॉर्ड्स आ गए। अब मैं यहां लगा देती हूँ नॉट ऑपरेटर। सो नॉट इसकी कंडीशन को ऑपोजिट कर देगा, मतलब जहां सिटी नोएडा नहीं है वो वाले रिकॉर्ड्स मुझे दिखा देगा, ठीक है। सो नॉट विल डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स वेयर यू नो द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, वो वाले रिकॉर्ड्स को आपको दिखाएगा, ठीक है। अगले एग्जाम्पल पर देखते हैं इसे। नॉट को आप ऐसे भी दे सकते हो कि एक आपने कंडीशन लिखी है, एंड के साथ लिख सकते हो, या और के साथ कोई कंबाइंड कंडीशन लिख सकते हो कि सिटी न्यू दिल्ली और जॉब इज इक्वल टू क्लर्क। ये एक एंट्री थी हमारे पास। तो हमने कंडीशन पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे बेटा, ब्रैकेट्स हमने लगा दी कि पहले ये चीज सॉल्व हो, ठीक। सो सिटी इज इक्वल टू न्यू दिल्ली एंड जॉब इज इक्वल टू क्लर्क का मेरे पास एक रिकॉर्ड आया। अब उसके बाहर जब मैंने नॉट लगा दिया तो मेरे उस रिकॉर्ड के अलावा सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। करके देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा वेयर, नॉट मैं अभी हटा के पहले आपको चला के दिखा देती हूँ। वेयर सिटी इज इक्वल टू नोएडा एंड जॉब इज इक्वल टू क्लर्क। तो आपको पता है कि मेरे पास एक एंट्री ऐसी है, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, न्यू दिल्ली, सॉरी। I'll just put this condition first, where क्योंकि जॉब कॉलम पहले है ना बेटा, एक बार ही रुक जाओगा। where जॉब इज इक्वल टू क्लर्क एंड सिटी इज इक्वल टू न्यू दिल्ली, ठीक है। ये मेरे पास क्योंकि जॉब मेरा पहले कॉलम है ना, तो पहले ये चेक हुआ, जब ये ट्रू हुआ तो ये आगे बढ़ा। तो ये आप ध्यान रखना कि कॉलम का ऑर्डर ठीक रखना जब आप एंड को बात करो, क्योंकि ये ट्रू होगी तभी वो आगे चेक करेगा, है ना। हमने सिटी पहले दे दिया था, वो फॉल्स सिटी की वजह से उसने आगे चेक नहीं किया था। तो ऑर्डर का ध्यान रखना बेटा, ठीक है। सो ये रिकॉर्ड आया। अब मैं यहाँ पर इस पूरी कंडीशन को एक ब्रैकेट में डालती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लगा देती हूँ नॉट, ठीक। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अब क्या हुआ, क्लर्क और न्यू दिल्ली वाले रिकॉर्ड के अलावा सारे रिकॉर्ड्स आ गए। तो जहां ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई वो वाले रिकॉर्ड्स मेरे पास आ गए। ये कंपाउंड कंडीशन थी, दो कॉलम्स पर लगी हुई। तो मेरे पास जहां ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई वो वाले रिकॉर्ड्स आ गए, ठीक है। सो नॉट ऑपरेटर एक सिंगल कंडीशन पे वर्क करता है। अगर वो आपकी कंडीशन एक कंबाइंड कंडीशन है तो आप कोशिश करो उसको ब्रैकेट्स में दो, ताकि वो पहले इवैल्यूएट हो, और नॉट उसके रिजल्ट के ऑपोजिट, उससे सेटिस्फाई होने वाले रिकॉर्ड्स के ऑपोजिट रिकॉर्ड्स को आपको दिखा देगा, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द लॉजिकल ऑपरेटर्स इन ओपन ऑफिस बेस।
ये सेम SQL में भी चलते हैं, MySQL में भी चलते हैं। सो इसके थ्रू आज आपने ये सीखा कि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और को यूज करके मल्टीपल कंडीशंस पे रिकॉर्ड्स को कैसे फिल्टर करते हैं, और नॉट के थ्रू हम कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने पर रिकॉर्ड्स को कैसे दिखाते हैं। सो आई होप दिस वीडियो पार्ट 2 ऑफ सिलेक्ट कमांड could satisfy your requirements and you could understand this. I would like to thank you all for watching this session. एक पार्ट और आएगा सिलेक्ट कमांड का पार्ट 3, जिसमें हम लाइक ऑपरेटर को कवर करेंगे और पैटर्न मैचिंग करके मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, सो डू वॉच दिस वीडियो, ट्राई आउट दिस एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकली, एंड इफ यू like this video, do share it in the comment section, and your queries are also most welcome. So dear children, till we meet again, I give all my blessings to you. Stay happy and happy learning. Thank you.